بلاول زرداری صاحب، یہ ہے آپ کا جیکب آباد ڈسٹرکٹ ہاسپٹل۔ جی ہاں، ضلع جیکب آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اور اس ضلع کی ٹوٹل آبادی ہے تقریباً 10 لاکھ۔ اس ضلع میں یہ حال ہے، یقین کیجئے کسی ملک میں جانوروں کے لیے بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہوتا جیسا آپ نے انسانوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ ہاسپٹل سے کمپیریزن کریں، تو آج ہی آپ کی یہ چیز بھی پوری کر دی۔ آپ کو نظر آ گیا، ابھی میں بلوچستان سے ہو کے آ رہا ہوں، یقین کیجئے بلوچستان کے ہاسپٹل سے بہت بہتر ہے۔ میں بلوچستان میں یوب گیا، میں وہاں قلعہ سیف اللہ گیا، میں وہاں پہ کوئٹہ گیا اور کچھ شہروں میں گیا، یقین کیجئے یہاں سے حالات بہت بہتر ہیں۔ میں بڑے ہیوی ہارٹ سے، بڑے دکھ سے یہ چیز آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں انسانوں جیسا سلوک نہیں ہے انسانوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ لوگ کو فنڈز نہیں آتے یا کیا فنڈ کھا جاتے ہیں سارا؟ فنڈس آتے ہیں سر، تو پھر یہ کیا حالات ہیں؟ تو بلوچستان بہت اچھا ہے سر۔ بلاول زرداری صاحب، آپ نے کل ہی کہا تھا کہ آپ کے سندھ کے ہاسپٹلز کا کسی اور صوبے کے ساتھ موازنہ کر لیجئے، تو یہ ہے آپ کے ایک ضلع کے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا حال۔ آپ پچھلے 12 سال سے لگاتار سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کی بے شمار حکومت رہی ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر آپ نے کرونا تو کیا، کسی عمومی بیماری کا علاج اس ہاسپٹل میں نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح گندگی کے انبار ہیں، جس طریقے سے ٹوٹ پھوٹ ہے، یہاں پر اگر کوئی مریض آئے گا تو وہ بیماری کا علاج کروانے نہیں، بیماریاں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے گا۔ موازنہ اب عوام کرے گی، فیصلہ اب عوام کرے گی کہ آپ کی وہ جو خوبصورت باتیں پریس کانفرنس میں ہوتی ہیں، وہ جو آپ کا کال ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کی اصل شکل اور آپ کا اصل فعل ہے، اس میں کیا تضاد ہے اور اس میں حقیقت کہاں پر ہے۔ آئیے مسٹر بلاول زرداری، اب آپ کو کارڈیالوجی وارڈ لے کر چلتے ہیں، جہاں پر آپ بڑے دل کے ساتھ دل کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ میرا سوال صرف یہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کارڈیالوجی وارڈ ہے، کیا بلاول زرداری صاحب یہاں پہ علاج کروائیں گے اپنا؟ جو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اتنے زبردست ہاسپٹل بنائے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا وہ یہاں پہ اپنا علاج کروانا چاہیں گے۔ اچھا جی، آپ کی یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہے، اور وہ ایمرجنسی ہے سامنے آفس ہے، وہ ادھر بنا۔ اچھا، او پی ڈی ابھی بند ہوگا۔ مسٹر بلاول زرداری، آئیے اب آپ کو جنرل میڈیکل وارڈ لے کے چلتے ہیں، اور آپ دیکھیے وہاں پہ آپ نے کتنی اچھی مینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ آئیے بلاول زرداری صاحب، اب آپ کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر چلتے ہیں، جہاں پر آپ مریضوں کو فوری طبی امداد تمام سہولتوں کے ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ خواہش تھی، آپ چاہتے تھے کہ آپ کو آئینہ دکھایا جائے، تو آئینہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے عمران خان کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ آپ اگر خود اپنا آئینہ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا تھا، اپنی پبلک کے ساتھ۔ جب کرونا آیا تو انہوں نے ایک پاپولر ڈیسیجن لیا، سخت ترین لاک ڈاؤن کا ڈیسیجن لیا۔ آج اگر میں آپ سے نمبر شیئر کروں تو آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ سندھ کی پاپولیشن ہے 48 ملین، پنجاب کی پاپولیشن ہے 110 ملین، یہ دگنے سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 1,78,000 کنفرمڈ کیسز ہیں، پنجاب کے 64,000 کیسز ہیں، سندھ کے 65,000 کیسز ہیں۔ اب یہ کہیں کہ ٹیسٹ زیادہ ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پنجاب میں 4 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور سندھ میں 3.5 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ تو آپ کے ٹیسٹ بھی کم ہیں، آپ کی آبادی بھی آدھے سے زیادہ کم ہے، پھر بھی آپ کے جو نمبر آف انفیکٹڈ پیشنٹ ہیں وہ پنجاب سے زیادہ ہیں۔ آپ نے تو سخت ترین لاک ڈاؤن کیا تھا، کیا ہوا سخت ترین لاک ڈاؤن کا؟ آپ نے تو سخت ترین لاک ڈاؤن کر کے یہ بتایا تھا کہ یہی ایک پالیسی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑا غلط ڈیسیجن لے رہے ہیں۔ ڈیسیجن آپ ہی کا ٹھیک تھا کہ سخت ترین لاک ڈاؤن کرو، کسی غریب کو کام کرنے کا موقع نہ ملے، کسی کو دیہڑی نہ ملے، اور سخت ترین لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو نمبرز ہیں یہ کیا ہیں؟ آپ کے سخت ترین لاک ڈاؤن، آدھی آبادی، ٹیسٹ بھی پنجاب کے زیادہ، پھر بھی انفیکشن یہاں ہے۔ وہ یہ ہے جو یہاں آپ کو سامنے ہاسپٹل میں کتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، جانور نظر آ رہے ہیں، اور انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر حالات میں آپ نے رکھا ہوا۔ اگلی بات آپ سے شیئر کر دوں، آپ نے پوچھا فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً ابھی تک 40 ارب کے قریب غریبوں تک پہنچایا صرف سندھ کے اندر۔ فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً 25 لاکھ خاندانوں تک رسائی کی سندھ کے اندر۔
फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 1503 वेंटिलेटर ऐड किए जो आ चुके हैं और बाकी ऐड हो रहे हैं। 2200 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स आ रहे हैं। बाकी कितने वेंटिलेटर्स हुए, बाकी क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। कहाँ से लेके आए? कितनी दूर? कितनी दूर? जानू बेले तकरीबन इधर से 1-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जी। तो कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिलता? अब इनके लोग यहाँ पर हमें धमकी शमकी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ से अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको मैंने दिखाना था कि यहाँ पे असल हालात क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास इतने ज़बरदस्त हॉस्पिटल हैं कि आप एक भी ऐसा दिखा दें। बिलावल जरदारी साहब, ये है आपका जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जी हाँ, जिला जैकबाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और इस जिले की टोटल आबादी है तकरीबन 10 लाख। उस जिले में ये हाल है। यकीन कीजिए किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जैसा आपने इंसानों के लिए बनाया हुआ है। आप कहते थे कि आप हॉस्पिटल से कंपैरिजन करें, तो आज ही आपकी ये चीज़ भी पूरी कर दी। आपको नज़र आ गया, अभी मैं बलूचिस्तान से होकर आ रहा हूँ। यकीन कीजिए बलूचिस्तान के हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। मैं बलूचिस्तान में योग गया, मैं वहाँ कला सैफुल्ला गया, मैं वहाँ पे कोयटा गया और कुछ शहरों में गया। यकीन कीजिए यहाँ से हालात बहुत बेहतर हैं। मैं बड़े हैवी हार्ट से, बड़े दुख से ये चीज़ आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ इंसानों जैसा सलूक नहीं है इंसानों के साथ। डॉक्टर साहब, क्या आप लोग फंड्स नहीं आते या क्या फंड खा जाते हैं सारा? फंड्स आते हैं सर। तो फिर ये क्या हालात है? तो बलूचिस्तान बहुत अच्छा है सर। बिलावल जरदारी साहब, आपने कल ही कहा था कि आपके सिंध के हॉस्पिटल्स का किसी और सूबे के साथ मुआवजा कर लीजिए। तो ये है आपके एक जिले के जिलेई हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का हाल। आप पिछले 12 साल से लगातार सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और इससे पहले भी आपकी बेशुमार हुकूमत रही है। उसके बावजूद यहां पर आपने कोरोना तो क्या किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। जिस तरह गंदगी के अंबार है, जिस तरीके से टूट फूट है, यहां पर अगर कोई मरीज आएगा तो वो बीमारी का इलाज करवाने नहीं, बीमारियां अपने साथ लेकर जाने के लिए आएगा। मुआवजा अब अवाम करेगी, फैसला अब अवाम करेगी कि आपकी वो जो खूबसूरत बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं, वो जो आपका कॉल होता है और ये जो आपकी असल शक्ल और आपका असल फेल है, इसमें क्या तजाद है और इसमें हकीकत कहां पर है। आइए मिस्टर बिलावल जरदारी, अब आपको कार्डियोलॉजी वार्ड लेकर चलते हैं, जहां पर आप बड़े दिल के साथ दिल के मरीजों का इलाज करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, इसको देखते हुए ये कार्डियोलॉजी वार्ड है, क्या बिलावल जरदारी साहब यहाँ पे इलाज करवाएंगे अपना? जो वो बता रहे थे कि उन्होंने इतने जबरदस्त हॉस्पिटल बनाए हैं कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे अपना इलाज करवाना चाहेंगे। अच्छा जी, आपकी ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और वो इमरजेंसी है सामने ओपीडी है, वो उधर वाला। अच्छा, ओपीडी अभी बंद होगा। मिस्टर बिलावल जरदारी, आइए अब आपको जनरल मेडिकल वार्ड लेके चलते हैं और आप देखिए वहां पे आपने कितनी अच्छी मैनेजमेंट की हुई है। आइए बिलावल जरदारी साहब, अब आपको इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलते हैं, जहां पर आप मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद तमाम सहूलतों के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश थी, आप चाहते थे कि आपको आईना दिखाया जाए, तो आईना आपके सामने है। आपने इमरान खान का क्या मुकाबला करना है? आप अगर खुद अपना आईना देख लें, जो कुछ आप आवाम के साथ कर रहे हैं, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, मैं अपने मीडिया के दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहता था, अपनी पब्लिक के साथ। जब कोरोना आया तो उन्होंने एक पॉपुलर डिसीजन लिया, सख्त तरीन लॉकडाउन का डिसीजन लिया। आज अगर मैं आपसे नंबर शेयर करूं तो आपके लिए हैरानी की बात होगी कि सिंध की पॉपुलेशन है 48 मिलियन, पंजाब की पॉपुलेशन है 110 मिलियन। ये दुगने से भी ज़्यादा का फर्क है। पाकिस्तान में टोटल 1,78,000 कन्फर्म्ड केसेस हैं। पंजाब के 64,000 केसेस हैं, सिंध के 65,000 केसेस हैं। अब ये कहें कि टेस्ट ज़्यादा हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। पंजाब में 4 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं और सिंध में 3.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। तो आपके टेस्ट भी कम हैं, आपकी आबादी भी आधे से ज़्यादा कम है, फिर भी आपके जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट हैं वो पंजाब से ज़्यादा हैं। आपने तो सख्त तरीन लॉकडाउन किया था। क्या हुआ सख्त तरीन लॉकडाउन का? आपने तो सख्त तरीन लॉकडाउन करके ये बताया था
कि यही एक पॉलिसी है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन आप ही का ठीक था कि सख्त तरीन लॉकडाउन करो, किसी गरीब को काम करने का मौका ना मिले, किसी को दिहाड़ी ना मिले, और सख्त तरीन लॉकडाउन ही इसका हल है। तो फिर यह क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? आपके सख्त तरीन लॉकडाउन, आधी आबादी, टेस्ट भी पंजाब के ज़्यादा, फिर भी इन्फेक्शन यहाँ है। वो ये है जो यहाँ आपको सामने हॉस्पिटल में कुत्ते फिरते नज़र आ रहे हैं, जानवर नज़र आ रहे हैं, और इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में आपने रखा हुआ। अगली बात आपसे शेयर कर दूं, आपने पूछा फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन अभी तक 40 अरब के करीब गरीबों तक पहुंचाया सिर्फ सिंध के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 25 लाख खानदानों तक रसाई की सिंध के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 1503 वेंटिलेटर ऐड किए जो आ चुके हैं और बाकी ऐड हो रहे हैं। 2200 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स आ रहे हैं। बाकी कितने वेंटिलेटर्स हुए, बाकी क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। कहाँ से लेके आए, कितनी दूर, कितनी दूर? और जानून बेले तकरीबन इधर से 1-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जी। तो कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिलता? अब इनके लोग यहाँ पर हमें धमकी शमकी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ से अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको मैंने दिखाना था कि यहाँ पे असल हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास इतने ज़बरदस्त हॉस्पिटल हैं कि आप एक भी ऐसा दिखा दें। बिलावल जरदारी साहब, ये है आपका जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जी हाँ, जिला जैकबाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और इस जिले की टोटल आबादी है तकरीबन 10 लाख। उस जिले में ये हाल है। यकीन कीजिए किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जैसा आपने इंसानों के लिए बनाया हुआ है। आप कहते थे कि आप हॉस्पिटल से कंपैरिजन करें, तो आज ही आपकी ये चीज़ भी पूरी कर दी। आपको नज़र आ गया, अभी मैं बलूचिस्तान से होकर आ रहा हूँ। यकीन कीजिए बलूचिस्तान के हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। मैं बलूचिस्तान में योग गया, मैं वहाँ कला सैफुल्ला गया, मैं वहाँ पे कोयटा गया और कुछ शहरों में गया। यकीन कीजिए यहाँ से हालात बहुत बेहतर हैं। मैं बड़े हैवी हार्ट से, बड़े दुख से ये चीज़ आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ इंसानों जैसा सलूक नहीं है इंसानों के साथ। डॉक्टर साहब, क्या आप लोग फंड्स नहीं आते या क्या फंड खा जाते हैं सारा? फंड्स आते हैं सर। तो फिर ये क्या हालात है? तो बलूचिस्तान बहुत अच्छा है सर। बिलावल जरदारी साहब, आपने कल ही कहा था कि आपके सिंध के हॉस्पिटल्स का किसी और सूबे के साथ मुआवजा कर लीजिए। तो ये है आपके एक जिले के जिलेई हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का हाल। आप पिछले 12 साल से लगातार सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और इससे पहले भी आपकी बेशुमार हुकूमत रही है। उसके बावजूद यहां पर आपने कोरोना तो क्या, किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। जिस तरह गंदगी के अंबार है, जिस तरीके से टूट फूट है, यहां पर अगर कोई मरीज आएगा तो वो बीमारी का इलाज करवाने नहीं, बीमारियां अपने साथ लेकर जाने के लिए आएगा। मुआवजा अब अवाम करेगी, फैसला अब अवाम करेगी कि आपकी वो जो खूबसूरत बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं, वो जो आपका कॉल होता है, और ये जो आपकी असल शक्ल और आपका असल फेल है, इसमें क्या तजाद है और इसमें हकीकत कहां पर है। आइए मिस्टर बिलावल जरदारी, अब आपको कार्डियोलॉजी वार्ड लेकर चलते हैं, जहां पर आप बड़े दिल के साथ दिल के मरीजों का इलाज करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, इसको देखते हुए कि कार्डियोलॉजी वार्ड है, क्या बिलावल जरदारी साहब यहाँ पे इलाज करवाएंगे अपना? जो वो बता रहे थे कि उन्होंने इतने जबरदस्त हॉस्पिटल बनाए हैं कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे अपना इलाज करवाना चाहेंगे। अच्छा जी, आपकी ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और वो इमरजेंसी है, सामने ओपीडी है वो उधर बना। अच्छा, ओपीडी अभी बंद होगा। मिस्टर बिलावल जरदारी, आइए अब आपको जनरल मेडिकल वार्ड लेके चलते हैं और आप देखिए वहां पे आपने कितनी अच्छी मैनेजमेंट की हुई है। आइए बिलावल जरदारी साहब, अब आपको इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलते हैं, जहां पर आप मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद तमाम सहूलतों के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश थी, आप चाहते थे कि आपको आईना दिखाया जाए, तो आईना आपके सामने है। आपने इमरान खान का क्या मुकाबला करना है? आप अगर खुद अपना आईना देख लें, जो कुछ आप आवाम के साथ कर रहे हैं, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, मैं अपने मीडिया के दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहता था, अपनी पब्लिक के साथ। जब कोरोना आया तो उन्होंने एक पॉपुलर डिसीजन लिया, सख्त तरीन लॉकडाउन का डिसीजन लिया। आज अगर मैं आपसे नंबर शेयर करूं
आपके लिए हैरानी की बात होगी कि सिंध की पॉपुलेशन है 48 मिलियन, पंजाब की पॉपुलेशन है 110 मिलियन। ये दुगने से भी ज़्यादा का फर्क है। पाकिस्तान में टोटल 1,71,000 कन्फर्म्ड केसेस हैं। पंजाब के 64,000 केसेस हैं, सिंध के 65,000 केसेस हैं। अब ये कहें कि टेस्ट ज़्यादा हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। पंजाब में 4 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं और सिंध में 3.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। तो आपके टेस्ट भी कम हैं, आपकी आबादी भी आधे से ज़्यादा कम है, फिर भी आपके जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट हैं वो पंजाब से ज़्यादा हैं। आपने तो सख्त तरीन लॉकडाउन किया था। क्या हुआ सख्त तरीन लॉकडाउन का? आपने तो सख्त तरीन लॉकडाउन करके ये बताया था कि यही एक पॉलिसी है, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन आप ही का ठीक था कि सख्त तरीन लॉकडाउन करो, किसी गरीब को काम करने का मौका ना मिले, किसी को दिहाड़ी ना मिले, और सख्त तरीन लॉकडाउन ही इसका हल है। तो फिर यह क्या है? ये जो नंबर हैं ये क्या हैं? आपके सख्त तरीन लॉकडाउन, आधी आबादी, टेस्ट भी पंजाब के ज़्यादा, फिर भी इन्फेक्शन यहाँ है। वो ये है जो यहाँ आपको सामने हॉस्पिटल में कुत्ते फिरते नज़र आ रहे हैं, जानवर नज़र आ रहे हैं, और इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में आपने रखा हुआ। अगली बात आपसे शेयर कर दूं, आपने पूछा फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन अभी तक 40 अरब के करीब गरीबों तक पहुंचाया सिर्फ सिंध के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 25 लाख खानदानों तक रसाई की सिंध के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 1503 वेंटिलेटर ऐड किए जो आ चुके हैं और बाकी ऐड हो रहे हैं। 2200 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स आ रहे हैं। बाकी कितने वेंटिलेटर्स हुए, बाकी क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। कहाँ से लेके आए? कितनी दूर? कितनी दूर? और जानून बेले तकरीबन इधर से 1-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जी। तो कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिलता? अब इनके लोग यहाँ पर हमें धमकी शमकी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ से अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको मैंने दिखाना था कि यहाँ पे असल हालात हैं।